میں اپنا وقت ضائع کیے بغیر مائک منگلہ صاحبہ کی طرف کرتا ہوں کہ پارٹی کی طرف سے کیا لائحہ عمل ہے آگے، چونکہ الیکشن کا دور اب شروع ہو چکا ہے، تو آپ کیا سوچ رہے ہیں اس پہ؟ جبھی بھی اگر ہم مائنورٹیز کے رائٹس کی بات کرتے ہیں یا مائنورٹیز کے ایشوز کی اگر بات کرتے ہیں، اور اگر کسی آرگنائزیشن کا نام میرے ذہن میں آتا ہے تو وہ یقینی طور پر NCJP ہے. اور تقریباً 20 سالوں سے تو میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ لوگ بڑا کانسٹنٹلی اس پہ کام کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ سارے کام بعض اوقات ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہوتے ہیں ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ شاید اس کا فائدہ کہیں نہیں ہو رہا، لیکن رفتہ رفتہ وہ چیزیں سامنے آتی ہیں اور ایک ٹائم کے بعد ان چیزوں کا فرق پتہ چلتا ہے. تو اب اگر ہم آج سے 20 سال 18 سال پہلے چلے جائیں اور اگر ہم آج دیکھیں تو بہت ساری چیزوں میں ہم فرق محسوس کرتے ہیں. یہ بالکل صحیح ہے کہ جس طرح سے بات کر رہے ہیں ہم یہاں پر سینسس کی، تو 2017 کا جو سینسس ہوا اس میں 0.19% جو ہے مائنورٹی کی جو اپنی تعداد ہے وہ کم کر کے بتائی گئی. تو سمجھ وہی نہیں آ رہا ہوتا کہ اتنے لوگ یہیں پر، اگر آپ مائنورٹی یہاں تعداد کم کرتے ہیں تو چلے پھر یہ بتا دیں کہ ہم یہاں مائگریشن کتنی ہوئی. پھر ہم وہ بھی ڈینائی کرتے ہیں کہ نہیں جی ہندوز کی مائگریشن تو نہیں ہو رہی، سب یہاں پر ہیں. اگر وہ سب یہاں پر ہیں تو کیا وہ جو پاپولیشن جو ہے کیا اس پر کی پابندی سے مائنورٹیز کے لوگ کرتے ہیں جو ان کی پاپولیشن نہیں بڑھ رہی ہے؟ تو بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو NCJP کو اب آنے والے الیکشن میں 2-3 چیزوں پہ کام کرنا چاہیے. وہ یہ ضروری ہے کہ ایک تو سینسس میں ان کی تعداد ہو، اس کی میں نے ریزولوشن بھی جمع کروائی تھی اسمبلی میں بھی، اور میں نے کوشچن بھی پوچھا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں ایسے کوشچنس کا جواب دیے ہی نہیں جاتے ہیں. اس کے علاوہ ایک کام اور بھی یہ ہے کہ جس طرح ذوالفقار نے بھی کہا کہ GSP+ اور یہ ساری چیزیں جب ہم ریویو کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں بڑی انٹرنیشنل ان کے نظریں لوگوں کی ہوتی ہیں وہاں کے. تو اب جب ہمارے جو کچھ اس طرح کے ایکٹس ہوتے ہیں وہ اس طرح شو نہیں کر رہے ہوتے. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ 1998 کے بعد سے جو مائنورٹیز کی سیٹیں اسمبلیز میں تھی وہی سیٹیں، اگر وہی سیٹیں ہیں تو کیا وہ نہیں بڑھی؟ لیکن اس پہ کام ہوا. اگر NCJP اس طرح سے ان کو بھی لابنگ کریں کہ ان کی سیٹیں بڑھنی چاہیے. نیشنل اسمبلی میں جب بل آیا کورم کی وجہ سے آگے نہیں گیا، اور پھر جب لایا گیا تو وہی ٹیکنیکل چیزیں کہ اس ٹائم پر لایا گیا جو بالکل ہی جب گورنمنٹ ختم ہو رہی تھی اس کا لاسٹ سیشن تھا. تو اس طرح سے دکھا دیا جاتا ہے، لیکن اگر اس میں مائنورٹی باہر جائیں گے تو یہ پتہ چلے گا جی اتنی سیٹیں اتنے لوگ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. تو اس پر لابنگ کی بہت ضرورت ہے. دوسرا کوٹا کی بات ہے کہ بالکل صحیح ہے کہ کوٹا جو ہوتا ہے اس پر امپلیمنٹ اس طرح نہیں ہوتا. میں نے اسمبلی میں بھی ایک کویشچن پوچھا کہ جی ہم نے اتنی سیٹیں مائنورٹی کی، میں نے کہا فرض کریں کہ آپ کے پاس 7 سیٹیں کی ویکینسی آئی ہے، اب 7 میں سے مائنورٹی کو آپ کتنی سیٹیں دیں گے؟ تو ظاہر ہے ان کے پاس نہیں تھا. جب اب تو ٹیکنیکلی ایک چیز آپ کو دکھاتے اور ہیں اور کرتے اور ہیں، سے بات دکھانے تک کی ہی ہے. لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے جو چیز ہے جو میں چاہوں گی کہ ایک آپ کو بھی سجیسٹ کروں گی، اور میں پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اپنی پارٹی میں بھی بات کرتی ہوں، لیکن اوور آل ضرورت یہ ہے کہ ہمیں اپنے لوگوں کو بھی یہ موٹیویٹ کریں. ہم بڑا خوش ہو جاتے ہیں کہ جی کسی پولیٹیکل پارٹی نے جی ہمیں کونسلر کی مائنورٹی پہ سیٹ دے دی، ہم اسی میں خوش ہو جاتے ہیں. لیکن ہماری یہ کوشش ہو کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر ہمیں جوائنٹ الیکٹرل کرنا ہے اور اس میں جانا ہے تو ہمیں اس کی پریکٹس نیچے سے ہی شروع کرنی ہوگی، اور یہ ضروری ہو کہ ہم لوگ ڈائریکٹ الیکشن میں جائیں. جو مائنورٹی کی سیٹ وہ دے دیتے ہیں، وہ لا کر ایک سارے لوگوں کو جمع کر کے ایک آ کے آپ کو بٹھا دیتے ہیں کہ جی یہ مائنورٹی کا ہے. اس کو آپ کاؤنسلر کو باقاعدہ الیکشن کے ذریعے اگر وہ آئے گا مائنورٹی والا تو اس کی تھوڑی سی عادت ہوگی. اور اگر وہ وارڈ پہ جو جنرل الیکشن وہ ہیں کاؤنسلر اس میں اگر آتے ہیں، اگر اس میں آتے ہیں تو پھر یہ آپ کے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو بھی ایک عادت ہوگی کہ وہ اور لوگوں کو دے، اور یہ اس کو ڈیولپ کرنا ہوتا ہے. ابھی مسلم پرویز صاحب چلے گئے، جب فورس کنورژن کی بات کرتے ہیں تو ہم اس بات کو نہیں کہتے وہ ٹھیک ہے، وہ سب کہتے ہیں صحیح نہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں مصلحت جب اس طرح کی دینی جماعتیں اس قسم کے واقعات میں مصلحتاً خاموش ہوتی ہیں تو پرابلم وہاں ہوتی ہیں. اگر جو بات آپ یہاں اس بند روم میں کرتے ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے، اگر آپ کی کوئی پریس ریلیز آپ باہر آ کے کوئی 2 لفظ کہہ دیں تو میرا خیال ہے بہت سارے اس کا فرق بھی پڑتا ہے. اور اس کا ہم جو چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہے ہوتے ہیں،
अब आप देख लें पिछली जो कैबिनेट थी, इतनी लंबी चौड़ी कैबिनेट थी, उसमें कितने माइनॉरिटी के लोग थे, मिनिस्टर्स थे। ये अभी जो कैबिनेट आई, क्या कोई माइनॉरिटी का एमएनए या एमपीए इतना कैपेबल नहीं है कि वो आपके पास वो उसको मिनिस्ट्री में आ सके? तो हम लोग जब माइनॉरिटी की बात तो कर रहे होते हैं, लेकिन दर हकीकत हम उसको माइनर ही ले रहे होते हैं। जब नाजरा कुरान का एक बिल पास हुआ तो मैंने वहाँ पर किसी एमएनए से पूछा, मैंने कहा ठीक है आपने करा, हमें कोई एतराज़ नहीं, आप ये बता दें ऑल्टरनेट जो माइनॉरिटीज़ के बच्चे उनके लिए आपने किया था? तो कहा जी हम आपके साथ हैं। मेरे साथ होने से क्या होगा भाई, आप काम करके बता दें, ये दे दें। तो टाइम बहुत कम है। मैं 2-3 चीज़ें कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ आप लॉबिंग आपको करनी पड़ेगी और उनको बताएं, और सिर्फ माइनॉरिटीज़ को नहीं, आप थोड़ा सा वेमेन के लिए भी बात करें, क्योंकि माइनॉरिटी की वेमेन जो है हमारे अमंग द माइनॉरिटी ये बड़ी प्रॉब्लम है। अब इस्लामाबाद में एक मरतबा कॉन्फ्रेंस हो रही थी, माइनॉरिटी ही के लोग थे, तो मैंने कहा जी भाई जी 10 सीटें हैं, अगर 10 में से आप कम से कम 2 माइनॉरिटी लेडीज़ के लिए ही छोड़ दें। तो कह रहे हैं जी वो अब हम क्यों छोड़ दें और सारे माइनॉरिटी के लेडीज चली गए, तो हमारे अपने ही लोग उसके खिलाफ थे। तो जब तक आप अगर एक तो वनरेबल हम कहते हैं, फिर माइनॉरिटीज़ को वनरेबल कहें, और फिर विमेन ये माइनॉरिटी की लेडी हो, तो फिर तो वो जाहिर है वो बहुत ही ज़्यादा वनरेबल है। तो हमें इस पर एक काम करना है। और आप ये लॉबिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ के, देखिए हम रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम बात करेंगे, लेकिन पॉलिसीज़ पार्टी की कहीं और बनती हैं, बनाने वाले भी और लोग हैं। और ये हकीकत है कि ये जो पार्टी की पॉलिसीज़ होती हैं वो हर किसी के साथ शेयर शायद नहीं होती हैं। तो आप उन लोगों से बात करें, उन लोगों के साथ आप जाएं। और ये भी मैं बता दूं कि आप उनको बुलाएंगे ना तो सब नहीं आएंगे। इसके लिए आपको ग्रुप बना के पॉलिटिकल पार्टी से अलग अलग मिलें, और जो आपसे कमिटमेंट शायद वो अकेले में कर लें, वो बात ऑथेंटिक होगी आपके सामने, यहाँ बात तो कर लेंगे, लेकिन ये होगी जमात इस्लाम बिल्कुल मुझे फर्स्ट उन्होंने जमात इस्लामी ने दिया और क्रेडिट है वो भी लेती हैं और मैं भी इसको इंडोर्स करती हूँ। लेकिन उसके बाद मैं 2 मरतबा काउंसलर रही, 2001 में जमात इस्लामी के अलायंस के थ्रू पैनल से, और उसके बाद 2016 में, और अब मैं एमपी हूँ। लेकिन मैं माइनॉरिटी होते हुए आज तक माइनॉरिटी की सीट पे नहीं आई, ना मैंने फॉर्म भरा। मैं 2016 में भी काउंसलर मुस्लिम सीट पे थी, और आज भी मैं एमकेएम की तरफ से प्रायोरिटी पे नंबर 1 मुस्लिम सीट पर हूँ, माइनॉरिटी की सीट पे नहीं हूँ कि मैं बात करती हूँ। उसमें फिर हमारा अपना भी आ जाता है, हमारे अपने लोगों का रोल भी आता है। ये भी हकीकत है कि जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो एक कहा जाता है वो बात नहीं करते, लेकिन अब फ़र्क आया है, और अगर अच्छी बात है तो हमें इसको एंडोर्स करना पड़ेगा। जब ये माइनॉरिटी प्रोटेक्शन बिल जो असेंबली से, नेशनल असेंबली से जब रिजेक्ट हुआ, तो सारे ही एमएनएस जो थे वो एक उस पर एक पेज पे थे, और उन्होंने बात भी की, प्रोटेस्ट भी किया। तो ये चीज़ें हो रही हैं, लोग आ भी रहे हैं। लेकिन ये कि आपको लोकल गवर्नमेंट के हवाले से अगर आप चाहेंगे तो आप उसमें ये कहें, क्योंकि अगर लोकल गवर्नमेंट से उनको आदत हो जाएगी कि माइनॉरिटी के लोगों को डायरेक्ट इलेक्शन में लाने की, तो फिर उनको भी हिम्मत होगी कि अगर वो वहाँ से जीत सकता है तो शायद उनको बड़े उस पर भी लेकर आए, और इस पर कम से कम ऐसी सीटों पर तो उनको खड़ा ना करें। जिस तरह इलेक्शन कमीशन को चाहिए 10% रख दिया है कि भाई लेडीज़ को वो देंगे जनरल इलेक्शन, लेकिन आप यहाँ रखें कि उस पर माइनॉरिटी को भी, आपको एक जो कमज़ोर तबका है उसको बराबर लाना है ना, उसको साथ साथ पीछे नहीं चलाएं। आप उनके लिए भी एक रखें कि एटलीस्ट हर पॉलिटिकल पार्टी 1 या 2 चले, ज़्यादा है अपनी 1 ही सीट चले, मान लें, उस पर भी खुश हो जाएंगे कि अपना जो विनिंग कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें आप माइनॉरिटी के बंदे को आप दें, ताकि लोगों को एक आदत बन जाए कि माइनॉरिटी के लोगों को वो वोट करें, और जब फिर जो है बॉल हमारी कोर्ट में आ जाएगी। क्योंकि अगर फिर माइनॉरिटी के लोग काम नहीं करते वहाँ पर सारे लोगों के लिए, तो फिर कंपटीशन भी बनेगा, और एक ये हेल्दी कंपटीशन होगा, और लोगों को आदत होगी कि हम लोग आए और इन लोगों को समझें। तो मेरा ख्याल है टाइम भी कम है, बात तो बहुत हो सकती है, लेकिन 2-3 चीज़ें यही हैं कि आप उसको करें। और दूसरी एक बात मैं लास्ट में ये भी कह रही हूँ, कमीशन की भी आपने बात की थी, तो मैं खुद समझती हूँ कि हमें ये कमीशन की, सिंध कमीशन की बहुत ज़रूरत है, और यकीनन वो उसी तरह से ज़रूरत है। थैंक यू NCJP, ये आप लोगों ने ये बहुत एक अच्छा प्रोग्राम रखा, और मुस्लिम साहब भी बैठते तो अच्छा होता कि वो सुनते हमें, क्योंकि वो ऐसे ही बोल के चले गए अभी। लेकिन यूनिस साहब बैठे हैं कि मैं कोशिश करें कि ईमानदारी से हमारी बातें उन तक पहुँचाएँ, क्योंकि उन्होंने बोला कि सब लोगों ने अच्छी बात की, और सब ने अच्छी बात की, तो उन्होंने क्या मतलब की, तो ये भी बड़ी एक उनको सुनने के लिए ज़रूरी था बैठना।
अच्छा, यहाँ पॉपुलेशन की बात पे मैं नंबर्स पे बात नहीं करूँगा, क्योंकि नंबर्स तो जो सेंसस होंगे जो कराए जाएंगे, इलेक्शन कमीशन जब कराती मर्दमशुमारी, और लेकिन उसको गलत साबित करने का आसान तरीका है, हम सिर्फ इस पे बोलने की हद तक न रहें। जो भी मिनारिटी का, क्रिश्चियंस को अगर शिकायत है या हिंदुओं को शिकायत है, तो वो छोटी आबादी के दोबारा पॉपुलेशन करवा सकते हैं। अगर ईसा नगरी में वो समझते हैं कि उनकी पॉपुलेशन कम दिखाई गई है, तो वो टाइम स्पेयर करके उसको पॉपुलेशन को दोबारा गिने और उसको साबित करें और उसको चेंज करवाएं। तो कहीं से भी छोटी जगह से आप इस तरह किया जा सकता है, बाकी तो सब सिर्फ बातें होती रहेंगी। अच्छा, शेड्यूल कास्ट की बात ये पाकिस्तान में बड़ी मुश्किल है। ये पूरी दुनिया में तमाम मज़ाहिब में गरीब लोग होते हैं, क्रिश्चियनों में भी हैं और हिंदुओं में भी हैं, और तमाम मज़ाहिब, मुसलमानों में भी हैं गरीब। तो शेड्यूल कास्ट एक हमारे वो लोग हैं जो गरीब लोग हैं, और मज़े की बात आप लोगों को हैरानी होगी कि उन गरीबों के अंदर भील कोली को बेटी नहीं देता, और कोली भील को नहीं देता, भील मेघवार को नहीं देता, और शिकायत वो हमारे अपर क्लास पे करते हैं, जबकि वो अपनी कम्युनिटी के अंदर एक दूसरे को बेटियां न देते हैं न लेते हैं। और ये तमाम लोगों में होता है, मुसलमानों में भी होता है, क्रिश्चियंस में भी होता है, कोई प्रोटेस्टेंट है, कोई कैथोलिक है, कोई ईसा नगरी में रहता है, कोई डिफेंस में क्रिश्चियन रहता है। जो डिफेंस वाला रहता है तो ईसा नगरी के वाले के साथ नहीं करता। ये बहुत मुश्किल, रेयर केस तो हो सकते हैं उसमें, लेकिन जनरली ये नहीं होता, क्योंकि हर आदमी अपनी जो क्लास के साथ रिश्ते नाते दोस्तियाँ वो होती हैं। तो मैं समझता हूँ, मैं इनको शेड्यूल कास्ट कभी नहीं समझता। और जस्टिस कोहली का नाम आप लोगों ने सबने सुना होगा, कई लोगों ने। उसकी कोहली की बेटी मेरे दोस्त के घर है, जो मेरा दोस्त डॉक्टर है, जो यहाँ कराची में रहता है, उसकी वाइफ है। तो जब भी कभी कोई भी भील मेघवार ओड अगर वो कोई कमीशन पास कर लेता है, असिस्टेंट कमिश्नर बन जाता है, APR में जाता है, डॉक्टर बन जाता है, उसकी क्लास चेंज हो जाती है, तो उनकी शादियाँ ऑटोमेटिकली दूसरे उनसे हो जाती हैं। तो सारा इशू ये सोशल इशू है, इसको हम वो न बनाएं। और ये स्टेट के फायदे में है। हिंदुओं को शुरू से डिवाइड किया गया है पाकिस्तान बनने से पहले कि शेड्यूल कास्ट हिंदू वही हिंदू है जैसा मैं हिंदू हूँ, लेकिन वो सिर्फ उनमें गुर्बत का मसला है, बाकी कोई मजहबी उसमें फर्क नहीं है। अच्छा, दूसरा हमारा जो यहाँ बात करेंगे हम मसाइल, तो हमारे जो यहाँ फोर्स कन्वर्जन भी है। अभी एक वीडियो मेरे क्रिश्चियन दोस्तों ने मुझे भेजी जिसमें ये है कि 3 महीने के अंदर 21 क्रिश्चियन लड़कियां कन्वर्ट हुई हैं। वो वीडियो जो मेरे पास आई है उसमें डिबेट किया है। तो ये बहुत सारा कन्वर्जन होता है जो मीडिया में नहीं आता है, रिकॉर्ड नहीं होता है। और मुस्लिम भाई हमारे जो चले गए उनको समझना पड़ेगा कि जब अभी दुआ ज़हरा होती है मुसलमान लड़की कन्वर्ट, तो उसको चाइल्ड मैरिज लॉ वाला प्रोटेक्शन दिया जाता है। सत्तार बाबर ने इस्लामाबाद से हाई कोर्ट में उसको एक मुसलमान लड़की को चाइल्ड मैरिज लॉ का दी। जब हमारी कोई लड़की कन्वर्ट होती है 14-15, तो हमारे शरिया लॉ हमारे पे लगाया जाता है। अभी खुद बोल रहे थे कि जो इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने फैसला दिया है वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। जब इस्लामी नजरियाती काउंसिल के आप करें नहीं इम्प्लीमेंट होगा, तो शरिया लॉ हमारे पे क्यों लगाया जाता है? जब भी हम तो हिंदुओं पे, नॉन मुस्लिम पे तो शरिया लॉ का इतलाक होना ही नहीं चाहिए। अगर मैं पार्लियामेंट में होता तो मैं तो ये बोलता, क्योंकि मेरा मजहब जो मैरिज लॉ क्यों अलग मेरा बनाया गया है, हमारा जो फैमिली लॉज अलग क्यों बनाए गए हैं क्रिश्चियंस के, सिखों के, हिंदुओं के। जब मुझे लाना ही मेरे पे लॉ ही आपका इस्लाम का लगाना है, तो फिर मेरे को अलग फैमिली लॉ देने की जरूरत क्या है? तो मुझे तो डायरेक्ट आप इस्लामिक लॉ लगाते हैं। तो वो चले गए, उनको बताना पड़ेगा, बल्कि उनको हमें बोलना पड़ेगा कि ये जो पाकिस्तान बना था वो ये भी बता के गए, अभी बोल रहे थे कि आपकी भी बातें सही हैं, और ये भी बोल के गए कि ये पाकिस्तान का लॉ जो इस्लामिक लॉ होगा, ये इस्लामी मुल्क बनेगा। तो भाई ये इस्लामी मुल्क बनता तो SP सिंघा और जोगिंदर नाथ मंडल का कोई दिमाग खराब नहीं था,
انہوں نے کوئی پاکستان کی سپورٹ کی تھی. میرے باپ دادا کا دماغ خراب نہیں تھا, وہ قائد اعظم کی تقریر جو 11 اگست کی سنی تھی انہوں نے تو رک گئے تھے, نہیں تو وہ بھی پاکستان کو چھوڑ سکتے تھے. اور میں بھی یہ بتا رہا ہوں کبھی بھی اگر اس ملک کو اسلامک لا لگایا گیا تو میں تو نہیں رہوں گا اس پاکستان میں, یہ میں بتا رہا ہوں. ہاں میں میری بات سنیں, میری بات سنیں, آپ اس پہ آئیں گے, میری بات سنیں تو صحیح, ان کو بات پوری کرنے دیجیے. میری بات تو پوری سنیں. آپ ایک نام لکھ کے گیا ہے کہ اسلامی فلاحی ریاست بنائے, لیکن اسلامک لا الگ چیز ہے. آپ جزیہ لیں گے نان مسلم سے, آپ پڑھیں تو صحیح, آپ تو وکیل ہیں. اسلامک لا نہیں ہے, ہم نہیں اپلائی کرنے دیں گے, یا میں نہیں رہوں گا. یہ میں وہ بات کر رہا ہوں. آپ لفظی طور پر تو اسلام کا یوز کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو ووٹ لینا ہے مسلمان ووٹر سے. یہ ساری جو الیکشن گیم ہو رہی ہے, یہاں وائن کیوں نہیں بند ہوتا پاکستان میں سے, وہ کیوں نہیں بند ہوتا؟ اس پہ ٹیکس ملتی ہے, گورنمنٹ بند نہیں کرتی ہے. اسلام میں الاؤ نہیں ہے, کہیں اسلام میں نہیں لکھا گیا کہ وائن کا اس میں پرمیشن ہے. آپ جماعت اسلامی والے اس پہ اعتراض کریں, اس پہ آپ لوگوں نے بھی اس میں پارلیمنٹ میں نہیں سپورٹ کرتے, جب وہ ہمارا ہندو لایا تھا یہ تو بل رمیش لال. تو میں سمجھتا ہوں یہ ساری گیم ہے ووٹ لینے کے لیے, اب ووٹر کو بولتے ہیں. لیکن جو پاکستان بنا تھا اس پہ ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں, میں ڈیپ میں نہیں جا رہا ہوں. تمام مذہبی تنظیموں نے اس کی مخالفت کی تھی پاکستان بنانے کی. اگر میں نام لوں گا تو سارے مسلمانی, انہوں نے, کمیونسٹ پارٹی نے اس کی حمایت کی تھی اور قائد اعظم کو بڑا بھلا کہا تھا. تو پاکستان جو بنا تھا وہ ایک سیکولر اسٹیٹ بنا تھا اور قائد اعظم نے کمٹمنٹ کی تھی, اور اسی وجہ سے انہوں نے جوگیندر ناتھ منڈل کو لا منسٹر بنایا تھا. ایک ہندو کیسے اسلامک لا بنا سکتا ہے؟ اور جوگیندر ناتھ منڈل کو صرف انہوں نے 47 میں نہیں بنایا تھا, 46 میں جو انٹیریم گورنمنٹ بنی تھی اس میں بھی بنایا تھا. اس وقت تو مسلم لیگ کے اور بھی وکیل موجود تھے, لیکن وہ جوگیندر ناتھ منڈل کو بنایا تھا. تو فورس کنورژن پہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کوئی بھی کنورٹ ہو سکتی ہے لڑکی, دنیا پوری میں یہ کنورژن ہوتا ہے, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن میں آپ کو کتاب دکھا سکتا ہوں, جب ہندوستان پاکستان ایک ساتھ تھے, پاکستان بننے سے پہلے مسلم لیگ نے ایک ریزولوشن اپنا مسلم لیگ کے اندر پاس کیا تھا کہ کوئی بھی لڑکی 18 سال سے کم عمر وہ کنورٹ نہیں ہو سکتی. یہ جی الانا کی کتاب ہے جو ریزولوشنز پہ, جو مسلم لیگ نے خود ریزولوشن پاس کیا 1928 میں. اس کا میں ریفرنس دے سکتا ہوں, کتاب دکھا سکتا ہوں. اور مسلم لیگ نے اس پہ لکھا ہے کہ کوئی بھی اگر لڑکی ایسے کنورٹ ہوتی ہے, کیونکہ اس وقت مسلمان لڑکیاں کنورٹ ہوتی تھی, ہندوستان پاکستان جب ساتھ تھا, تو اس لیے ان مسلم لیگ نے یہ ریزولوشن پاس کیا تھا. اور انہوں نے یہ لکھا ہے واضح طور پر کہ کوئی بھی کنورٹ ہوگی تو وہ پیرنٹس کے ساتھ نہیں ہو رہی, الگ سے ہوئی ہے, تو اس کو واپس اسی کے مذہب کے لوگوں کو دی جائے گی. تو یہ اس پہ عمل مسلم لیگ نے جو ریزولوشن پاس کیا, آج ضرورت ہے پاکستان میں. کل قائد اعظم کی مسلمانوں کو ضرورت تھی, آج قائد اعظم کی ہمارے کو ضرورت ہے. تو اس لیے قائد اعظم ہمارا ہیرو ہے, کل بھی ہیرو تھا, ہم آج بھی اس کو ہیرو مان رہے ہیں. اچھا, الیکشن سسٹم جو ہمارا ہے, الیکشن سسٹم یہ جو جب تک ریزرو سیٹس والا سسٹم رہے گا, کوئی بھی اقلیتی ممبر وہ بات نہیں کر پائے گا. اور اس کا طریقہ کار نکالا جا سکتا ہے, ہم بیٹھ کے اس پہ بات کر سکتے ہیں. انڈیا میں آپ کو سسٹم کو پڑھیں کہ وہاں جو شیڈول کاسٹ ہندو ہوتا ہے وہ الیکشن کے تھرو ان کو ایک 25% سیٹس دی گئی ہیں وہاں پہ, کہ ان کے لیے کانسٹیٹوئنسی فکس کی گئی ہیں. اور اس کانسٹیٹوئنسی سے صرف جہاں شیڈول کاسٹ کھڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ کوئی اپر کلاس کا ہندو یا وہ مسلم کھڑا نہیں ہوتا, صرف شیڈول کاسٹ کھڑے ہوتے ہیں اور تمام پارٹیوں کا شیڈول کاسٹ ہوتا ہے. میں مثال ایک چھوٹی سی دوں کہ اگر ہماری 10 سیٹیں ہیں نیشنل اسمبلی کے اور ڈیوائڈ کی جاتی ہیں, تو جو سندھ کے حصے میں آتی ہیں جیسے عیسیٰ نگری یا اعظم بستی, کوئی بھی ایک آبادی جو سب سے بڑی آبادی ہے, اس کانسٹیٹوئنسی کو فکس کیا جائے, اس کے اندر مسلمان ووٹر بھی رہتا ہے, اور تو لیکن وہ مسلمان بھی ووٹ کرے گا, لیکن وہ کھڑا نان مسلم ہوگا, وہ پی ٹی آئی کا امیدوار ہوگا, مسلم لیگ کا ہوگا, پی پی کا ہوگا, لیکن نان مسلم ورسز نان مسلم ہوگا, ووٹر دونوں ہوں گے.
اور میں یہ بتاؤں کہ جو سیپریٹ الیکشن کی بات کر رہے ہیں وہ نہ کریں، کیونکہ ہمیں مسلمان ووٹر بھی چاہیے. ہمیں اگر جیسے کوٹا سسٹم بنایا گیا ہے، پورے ملک میں بنایا جاتا ہے کہ جو بیکورڈ ایریاز ہیں ان کو برابر میں لانے کے لیے کچھ ٹائم کے لیے کوٹا سسٹم مقرر کیا جاتا ہے. تو وہ کوٹا سسٹم کا یہ فائدہ ہوتا ہے، لیکن ہمیں مستقبل میں اس کا یہ فائدہ پڑے گا کہ جب مسلمان بھی میرا ووٹر ہوگا، اگر ہمیں 3-4 الیکشن دیے جاتے ہیں اور میں مسلمان کا ووٹ لے کے اس کا ممبر بنتا ہوں، اس کا کام کروں گا، تو 20 سال کے بعد ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی، ہم ڈائریکٹ الیکشن میں جیتیں گے اور مسلمان ووٹر ہمیں ووٹ کرے گا. کہ شروع میں ہمیں اس کی ضرورت ہے اور اس پہ ہم بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں. لیکن الیکشن میں یہ بھی ہے، آپ تو الیکشن کی بات کر رہے ہیں، ریزرو سیٹ پہ کہاں ہمارے اسمبلی ممبر کھڑے ہوتے ہیں؟ آپ کے 342 نیشنل اسمبلی کے سیٹیں ہیں، ہماری 10 سیٹیں کیوں ہیں بھائی؟ یہ تو 5% کے حساب سے 15 سے زیادہ سیٹیں بنتی ہیں، لیکن ہمارے اسمبلی ممبر بولتے ہی نہیں ہیں. حالانکہ تو اس میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، لیکن جب تک یہ الیکشن سسٹم چینج نہیں ہوگا تو اس پہ وہ بات نہیں کریں گے. آج میں اس کو شارٹ کروں گا، لیکن مجھے 5-7 منٹ صرف چاہیے. ایک تو انہوں نے دوست نے ایک رول آف پی پی کہا تھا کہ ان سے ہم ایک انگیجمنٹ کر سکتے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب اگر مزید 2-3 منٹ لے لیں تو کہ ہم اور بھی 4-5 دوستوں سے سننا چاہ رہے ہیں، افطار کا ٹائم بھی قریب ہو رہا ہے. جی لیکن مجھے پہلے بات کروانی چاہیے تھی. آپ نے عام سیٹوں میں وہاں سے زاہد فاروق کا ٹائم گنے اور میرا ٹائم دیکھیں. اچھا، تو اس میں ایک بات کروں گا کہ جو سندھ کی حالت ہے، سندھ سیکولر ہے زیادہ دوسرے صوبوں سے. میں زیادہ ٹائم لوں گا، شارٹ کرتا جا رہا ہوں. تو اس لیے سندھ میں ہوتا ہے. لیکن جو فورس کنورژن کا لا تھا، جہاں نیشنل اسمبلی نے واپس کیا وہاں سندھ اسمبلی نے بھی واپس کیا، تو ان کی برابری زیادہ ہے. سندھ میں جو 14 سال کی لڑکی کنورٹ ہوتی ہے تو سندھ ہیومن رائٹس کمیشن کبھی اس کا میں نے اسٹیٹمنٹ نہیں پڑھا کہ اس کے خلاف بیان آیا ہو. گھوٹکی سے اٹھائی گئی. میری بات نہیں، آپ مطلب ایسے بات نہ کریں نا. میں واپس لے لوں گا. میں اس کو مان رہا ہوں کہ سیکولر ہے سندھ، اس پہ بات میری سنیں. لیکن واپس لیا گیا. پروفیسر نوتن کو بلاسفیمی کیس میں سندھ میں ڈالا گیا ہے. اس کی پراسیکیوشن اسٹرانگ نہیں کی، سندھ گورنمنٹ کو کرنی چاہیے تھی. تو اس پہ میں بحث میں نہیں پڑھوں گا. رانگ از رانگ. پی ٹی آئی کل کوئی بھی لا بناتی ہے جو میرے خلاف ہے، نان مسلم کے خلاف ہے، I will be the first man against the PTI. تو میں اس کے بات کروں گا. بات کرنی چاہیے، میں اس پہ جا رہا ہوں. اب میں لاسٹ بات کروں گا NCM پہ، جو آپ نے بات کری ہے، جو امپورٹنٹ ہے. میں یہ نہیں بات کروں گا NCM کوئی آئیڈیل پارٹی بنی ہے، ٹھیک ہے، لیکن بہتر پارٹی بنی ہے دوسروں سے. اس میں بہتر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلی دفعہ اس کا نان مسلم چیئرمین بنایا گیا، نمبر 1. دوسرا، اس میں 12 ممبر ہیں تو صرف 2 ہیں جن کا ڈائریکٹ پی ٹی آئی سے تعلق ہے. 10 لوگ ہیں جو جن کا پی ٹی آئی سے دور تک تعلق نہیں ہے. لیکن سندھ میں جتنی کمیٹیاں بنتی ہیں گورنمنٹ کی، اس میں میجارٹی پی پی کی ہوتی ہے. اچھا، دوسری اس میں ہم نے کئی باتیں رکھی، لیکن جب تک وہ اس میں جو ممبر ہوتے ہیں وہ تمام ممبر ایک اسٹینڈ نہیں لیتے تو کوئی بھی پالیسیاں نہیں بن سکتی. ہمارے ریکارڈ پہ، گورنمنٹ کے ریکارڈ پہ ہے کہ جو فرسٹ ہماری میٹنگ ہوئی تھی، میں نے اس پہ لکھا تھا منارٹی کمیشن شوڈ بی فار منارٹی، بائی منارٹی، آف منارٹی. اس میں ایک میں نے بات کی تھی، ڈاکٹر رمیش نے بات کی تھی، دوسرے کسی ممبر نے اس پہ اسٹینڈ نہیں لیا تھا. اور میں مستقبل کے لیے بھی بولتا ہوں کہ اس میں مسلمان ممبر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہندوستان میں جو کمیشن ہے اس کا ہندو ممبر نہیں ہے. اچھا، دوسرے میں کئی چیزیں اس میں ہوتی ہیں جو ممبرز جب تک سپورٹ نہیں کریں گے. ہم نے ایکٹ بنا لیا ہے جو 70 سال میں ایکٹ نہیں بنا تھا. میں یہ بھی نہیں بولوں گا کہ وہی کوئی ایکٹ وہی آئیڈیل ایکٹ ہے، لیکن کافی چیزیں اس میں بہت بہتر ہیں جو فیوچر میں اس میں چینجز بھی آ سکتی ہیں. اس میں نے وہاں رکھا تھا کہ جو اس کا ممبر ہو وہ منیمم گریجویٹ ہو، لیکن دوسرے ممبروں نے اس کے سپورٹ نہیں کی تھی، تو یہ اس میں نہیں ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے نیشنل میں اور پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے اسمبلیوں سے بھی یہ ہٹا لیا تھا گریجویشن کا پہلے جو تھا، لیکن ویسے پڑھا لکھے کا ہونا بہت ضروری ہے. تو میں سمجھتا ہوں مستقبل میں جو منارٹی کمیشن بنے گی وہ بہتر بنے گی، اور ایک اس پہ ورک ہونا چاہیے. جو اس میں چینجز لانے کی ضرورت ہے اس میں لانا چاہیے، کیونکہ ابھی یہ منارٹی کمیشن کی ابھی میٹنگز ہماری جو نئے منسٹر آئے ہیں ان سے ابھی ہوگی.
कमिंग मंथ मई में, तो हम चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और मैं समझता हूँ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इसमें कोशिश करें और इसमें दूसरे भी मेंबर बने, क्योंकि हम दूसरे पे सिर्फ तनकीद करते हैं। पाकिस्तान में ब्लेस्फेमी का लॉ भी मौजूद है, उस पर बहुत ज़रूरी है बात करना। सलमान तासीर को एक वो उसकी सज़ा मिली, लेकिन उसके लिए कोई जो वॉइस रेज नहीं किया गया, उसको नहीं होनी चाहिए थी सजा। और आज भी ब्लेस्फेमी में जो लॉ बना हुआ है, मेरे अगर मंदिर की बेहुरमती हो, मेरे अगर नबी की बेहुरमती हो, तो उसके लिए सजा कम है। क्रिश्चियन के नबी की बेहुरमती हो लेकिन मुसलमान के नबी की बेहुरमती हो, तो उसके लिए सजा ज्यादा है। तो ये तमाम चीजों को कंसीडर करने की और उस पर बात करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया। मैं एक मिनट में सॉरी जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं पूरा एतकाद रखता हूँ आपकी सारी गुफ्तगू पे, और मैं ये भी समझता हूँ कि आप ये सारी बातें अपनी पार्टी के अंदर बैठ के अपने मैनिफेस्टो लिखने वालों को भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच इन सारी चीज़ों का। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जनाब नदीम शेख साहब का, सलीम माइकल साहब का, यूनुस साहब का, जैकलिन सुल्तान साहब हैं, विशाल हमारे साथ पाकिस्तान हिंदू यूथ काउंसिल से तशरीफ़ फरमाए। सो मैं एक 2 मिनट के लिए आप सब लोगों को टाइम दे सकता हूँ, चूँकि आप लोगों को रोज़ा खोलना है तो टाइम का ज़रा ख्याल रखिएगा तो मुनासिब होगा। तनकीद की तरफ ना जाइएगा जी, कॉन्ट्रडिक्शन ना हो प्लीज़। मैं शुरू करता हूँ यीशु मसीह के नाम से जो अंधों को आंखें मुर्दों को जिंदा करने वाला है। मैं चंद बातें करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि वो बातें मेरी पार्टी के ऊपर आई हैं। जैसे जयपाल छापड़िया साहब ने कहा कि शराब का जब बिल पेश किया गया तो जमात इस्लामी नहीं बोली। मेरा ख्याल इनको शायद पता ही नहीं है। वो डॉक्टर रमेश साहब से पूछ सकते हैं कि जमात इस्लामी उनके साथ थी या नहीं थी। उसके बाद सिटी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर जब एक करारदाद आई कि कराची के अंदर शराब का कारखाना लगना चाहिए, मंगला शर्मा इस चीज़ की गवाह है कि मैं स्टेज के ऊपर जब मैं खड़ा हुआ बेल बजाता, मैं कहता रहा, लेकिन मुझे टाइम नहीं दिया जा रहा था, तो मैं एकदम खड़ा हो गया। मैंने कहा अक़लियत को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा, अक़लियत का गला दबाया जा रहा था। एकदम मुझे कहा गया जी बोले। तो मैंने कहा जी ये कैसे हो सकता है कि हाल में बैठे तमाम मोअज़्ज़िज़ अरकान ये माने कि हज़रत ईसा यीशु मसीह जो है वो अल्लाह का नबी है, तो ये आप मान सकते हैं कि अल्लाह का नबी शराब की इजाज़त दे सकता है? ये कैसे हो सकता है कि जिसको आप अहले किताब कहते हो, अंजील मुकद्दस कहते हो, बाइबल कहते हो, किताब और वो इल्हामी हो, और उसके अंदर शराब की इजाज़त हो, ये कैसे मुमकिन है? और मैं इस मंगला शर्मा इस चीज़ की गवाह है कि उस जो रेजोल्यूशन पेश की गई उसको बुलडोज कराया मैंने, और वो करारदाद पास नहीं होने दी। मैं वर्ड्स वापस ले रहा हूँ, लेकिन आपकी जब हुकूमत थी तब मैं फिर भी कह रहा हूँ कि कॉन्ट्रडिक्शन की तरफ नहीं जाएं। आपका पॉइंट आ गया, लेकिन सिर्फ तजवीज़ की तरफ आए, किसी पार्टी को मेरा मतलब फोकस तजवीज़ की तरफ आए कि अगर दुनिया के अंदर बहुत से ममालिक के अंदर बल्दियाती निज़ाम जब चल रहा है तो वहाँ हमारे मुस्लिम भाई जो है मेहर है। हमारी ये तजवीज़ है पार्टीज को कि वो अगर मेयर नहीं तो डिप्टी मेयर जो है वो अक़लियत से होना चाहिए, बड़े शहरों का, खासकर कराची का डिप्टी मेयर को मेयर होना चाहिए। और शायद मुस्लिम भाई ये बात नहीं कह कर गए, क्योंकि जैसे मंगला साहबा ने बताया कि पार्टी पॉलिसी जो होती है उसको कई दफ़ा हम नहीं बताना चाहते। जमात इस्लामी इस बात पर गौर कर रही है कि कराची शहर का डिप्टी मेयर जो है वो अक़लियती हो। बहुत अच्छा। और मैं आपको ये बता रहा हूँ, आने वाला तारीख और टाइम नोट कर ले और जमात इस्लामी इसको गौर करे। बहुत अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। हमारे पास सिर्फ 7 मिनट है, हमने बाकी दोस्तों को भी सुनना है। नदीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हाज़रीन का। नेशनल कमीशन फॉर जस्टिस एंड पीस हमेशा तामीरी प्रोग्राम करती है और हमारा बरसों बरस का ताल्लुक़ है। और मैं समझता हूँ कि जितने स्टेक होल्डर मेरे यहाँ बैठे हैं, मेरा भाई रवि डवानी, डॉक्टर साहब बैठे हैं, मेरी बहन मंगला, मेरा सीनियर एडवोकेट यूनुस सोहान, मेरा भाई माइकल, और जितने यहाँ पर कैबिनेट बैठी है, मैं समझता हूँ कि इस तरह के फोरम होने चाहिए। दिस इज़ द हेल्दी एक्टिविटी। चोई साहब, ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है, इसको होना चाहिए। और जस्टिस हेल्पलाइन जो कि सुप्रीम कोर्ट में 100 वोटों केस 01/2014 की
कुछ चीज़ें इंटरप्रेशन के लिए माइकल साहब बात करेंगे अभी, और मैं समझता हूँ कि इस तरह का फोरम जो है वो हम आपको अप्रिशिएट करेंगे। और माह रमज़ान में आपने हमारे लिए आज बहुत बड़ी रात है, और मैं आपको स्पेशली, मुझे माइकल भाई ने कहा आना है तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा, पूरी कैथलिक, पूरी तमाम मिशनरी बोर्ड को। बहुत शुक्रिया। मेरा यंग ब्लड सारे बैठे हैं, मेरी बहन एडवोकेट बैठी है। दिस इज़ द वेरी अप्रिशिएट सेरेमनी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सलीम भाई। जी, मैं नेशनल जस्टिस एंड पीस कमीशन का शुक्रगुजार हूँ कि वो हमेशा अच्छी किस्म की जो है ना बुनियादी कॉन्फ्रेंसेस करते हैं जिससे हम आगे बढ़ सकें। तो जस्टिस हेल्पलाइन जो है उसने 2014 से जो अपनी तहरीक शुरू की हुई है मिनॉरिटीज़ के लिए, तो हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल दोनों प्लेटफॉर्म पे जो है ना मुश्तरका काम कर रहे हैं। अगर हम किसी चीज़ों में तब्दीली चाहते हैं ना, तो हमें रिसर्च पेपर बना के, और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का अदारा है लॉ एंड जस्टिस कमीशन, उनको हमें रिकमेंडेशंस भेजनी पड़ेगी। उसके ऊपर फिर एक बोर्ड बैठता है, फिर वो नेशनल असम्बली को जाना है या प्रोविंशियल असम्बली को जाना, हमारा इशू क्या है। तो हम जस्टिस हेल्पलाइन की तरफ से आपको ये दावत देते हैं कि रिसर्च पेपर हम मुख्तलिफ तैयार कर रहे हैं, और अब मुख्तलिफ अखबारात में आप हमारी कामयाबियों को पढ़ भी रहे होंगे जो हम मिनॉरिटीज़ पे कर रहे हैं। तो मैं राना साहब को भी दावत देता हूँ, मैं नेशनल जस्टिस एंड पीस कमीशन को भी दावत देता हूँ, यूनुस खान को भी दावत देते हैं कि जो रिसर्च पेपर हम बना रहे हैं, जाहिद भाई हमारे इतने सीनियर साथी हैं, जितने लोग भी यहाँ बैठे, तो आप लोग हमारी मदद करें, क्योंकि हम आपसे भी सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ भी आप बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। लेकिन यहाँ बातें करके, और ये तो नेशनल जस्टिस एंड पीस कमीशन की बड़ी हिम्मत है कि वो हमें बुला भी लेता है, हमारी बातें सुन लेता है, लेकिन हमें उसको जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट में हमारी 52 प्रेयर्स हैं, 52 हमारी रिकमेंडेशन है सुप्रीम कोर्ट में, एक एक करके हम सारी चीज़ें उस पर इम्प्लीमेंट्स हो रही हैं। तो हमें खुशी होती है, चाहे उस पर कोई भी काम करे, अगर कोई एजुकेशन पे काम कर रहा है, किसी और सब्जेक्ट पे, हमें तो खुशी होती है। लेकिन अगर हम मिलके काम करेंगे तो शायद ये सफ़र जल्दी अपने इख्तिताम पर पहुंचेगा और हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, और पाकिस्तान भी तरक्की करेगा, और पाकिस्तान की मिनॉरिटी भी तहफ़्फ़ुज़ महसूस करेगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी राना साहब प्लीज। ऑब्जेक्टिविटी और रेलेवेंसी अगर रहे तो मैं समझता हूँ वही फोकस होना चाहिए था। सबसे बड़ी देखें, इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं तो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने मैनिफेस्टो में अगर डालने पे हम इन्हें रिकमेंड करें, खासतौर पे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को दोबारा रीथिंक करना पड़ेगा, दोबारा सोचना पड़ेगा। अगर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखना है और माइनॉरिटी राइट्स रखना है तो दोनों चीज़ें साथ साथ नहीं चलेंगी। दूसरी चीज़ है इलेक्शन कमीशन की कॉम्पोजिशन जो है उसमें माइनॉरिटी की क्या हैसियत है, उसको स्टेटस के ऊपर हम एक रिसर्च भी कर रहे हैं। अभी मेरी जर्मनी से दोस्त अभी कल आएंगी, तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि आपने इलेक्शन कमीशन की कॉम्पोजिशन के ऊपर क्या रिकमेंडेशन देनी है, ताकि माइनॉरिटीज को आज़ादाना तौर पर बिना किसी खौफो खतरा इलेक्शन में पार्टिसिपेशन का जो राइट्स है वो उनको मिल सके। उसके साथ साथ फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर की अगर आप देखें तो उनके अंदर जो रिफॉर्म्स हैं उसके लिए मैनिफेस्टो में क्या चीज़ें वो ऐड ऑन कर सकती हैं। बाकी जनरल बातों पे तो सभी एग्री करते हैं जी हम बहुत अच्छे हैं, बहुत नेक लोग हैं और हम सब अच्छे हो जाएंगे, माशरा अच्छा हो जाएगा। इस तरह सोसाइटी चलती नहीं है, सोसाइटी एक रैशनैलिटी पे चलती है। तीसरी चीज़ ये है कि सेंसस सोरिया अवान साहबा देख ली है, आप अगर चाहें तो इस्लामाबाद में उनसे मुलाकात भी कर लें, दिसंबर तक उसके रिजल्ट भी आ जाएंगे कि सेंसस में माइनॉरिटी की असल तादाद जो है वो क्या है। उसमें आपको भी उस कमेटी में माइनॉरिटीज को होना चाहिए था, जो सेंसस की पूरी कमेटी बनी हुई है। तो उस लेवल पे ये तजावीज़ आपको पॉलिटिकल पार्टीज को देनी होगी, और जो इलेक्शन से पहले आपको एटलीस्ट पार्टी के जो वो लोग हैं जो पावर ऑफ कॉरिडोर के लोग हैं उनसे जब तक आप नहीं मिलेंगे और पॉलिटिकल इकोनॉमिक एनालिसिस नहीं करेंगे कि इलेक्शन में कौन से वो स्टेक होल्डर हैं जिनके साथ मिल के अगर आप काम करेंगे तो आप जो माइनॉरिटीज़ को इलेक्शन में रिप्रेजेंटेशन में आप ला सकते हैं। कॉस्मेटिक बातें, टोकन ऑफ एप्लीकेशन, यानी एक थर से बच्ची उठा के उसको सेनेटर बनाने से पूरे थर को राइट्स नहीं मिल जाएंगे। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कॉस्मेटिक्स आपने ऑप्टिक्स को देखना है या चीज़ों को देखना है। फिर आरजीएसपी प्लस स्टेटस में 13 तजावीज़ हैं, 13 के स्टेटस को आपने देखना है कि आपने लॉबिंग पॉलिटिकल पार्टीज के साथ किस तरह करनी है। उसके बाद सीडॉक की रिपोर्ट जाने वाली है, उसको भी आपने देखना पड़ेगा कि वो उसमें आप किस तरह माइनॉरिटीज की रिप्रेजेंटेशन जो है, सीआरसी का रिव्यू भी है, सीआरसी का रिव्यू भी आने वाला है, वो भी आपने देखना है। इसके साथ साथ फिर जून से पहले अगर आप कोई चीज़ पॉलिटिकल पार्टीज के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि जैसे ही बजट आएगा उसके बाद सियासी जमातें जो अभी हुकूमत में नहीं है वो प्रेशर देना शुरू हो जाएंगी कि इलेक्शन जल्दी कराएं। तो उससे पहले अगर आपने एडवोकेसी कर दी, क्योंकि मोमेंटम में एडवोकेसी नहीं होती। जी बिल्कुल, पूरी कोशिश है कि उससे पहले ही हम करें।
इसके अलावा भी बहुत चीज़ें बहुत ज़बरदस्त कॉन्क्रीट और रेलिवेंट, बहुत रेलिवेंट। जैकलिन तबस्सुम, सॉरी मुख्तसर, हमारे पास सिर्फ 3 मिनट है। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीजेपी, क्योंकि आपकी काविशों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, क्योंकि आप लोग इस चीज़ के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि जब बात होगी तो उसके लिए सोल्यूशन आगे निकलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, जैसा कि सब ने कहा कि सेंसिस जो है वो प्रॉपर होने चाहिए, क्योंकि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके सेंसिस में जो नंबर्स हैं वही एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, बीइंग क्रिश्चियन रिप्रेजेंटेशन, मैं ये कहूँगी कि जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनकी प्रेजेंटेशन प्रॉपर नंबर में नहीं है। हमें ये भी काम करना होगा कि जब वो सेंसिस हो तो उनकी प्रेजेंटेशन हो, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जाके उनकी सेंसिस में हेल्प करें। और दूसरी चीज़ ये मैं कहना चाहूँगी, जैसे कि फोर्स कन्वर्जन और फोर्स मैरिजेस की मैडम मंगला बात कर रही थी और सब ने बात की है, लेकिन बात सिर्फ ये आती है जहाँ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ की आती है वहाँ लॉ की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। जो सिंध चाइल्ड मैरिज डिस्डेन एक्ट की बात होती है तो वहाँ पे लैकुनास यही रह जाते हैं कि जो मैरिज है उसको शुरू से ही नल एंड वाइड होना चाहिए, शुरू से ही इलीगल हो। ये नहीं है कि कोर्ट की प्रोसीडिंग के बाद एक नया तमाशा क्रिएट हो, फिर उसके बाद उसके लिए बात हो कि वो शादी जो है वो इलीगल है या नहीं है, क्योंकि ऐसा ही आज केस जो है वो सेशन कोर्ट में और हाई कोर्ट में डिसाइड हुआ है। जो औरंगी टाउन की बच्ची है मीरब, उसमें मैरिज को कहीं पे भी इलीगल करार नहीं दिया गया। तो इस चीज़ों के लिए कंक्रीट जो है वो बात होनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हैं, जैसे कि सलीम भाई आप कह रहे थे कि 52 रिकमेंडेशंस हैं, तो हम लोग ये चाहेंगे जो आपकी रिकमेंडेशंस हैं उनको भी आप लोग शेयर करें ताकि हम उस चीज़ के लिए काम कर सकें। थैंक यू सो मच। थैंक यू तबस्सुम। विशाल इकबाल साहब को तो मैं सबसे पहले सलाम पेश करूंगा उनकी बहादुरी के लिए, और वो हमेशा डटे रहते हैं अपनी चीज़ों पे। 1 मिनट में शायद मैं वो चीज़ें ब्रीफ ना कर सकूं जो पिछले 3 घंटे से दिमाग में लिए बैठा हुआ था। हम शायद भूल रहे हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो आबादी है वो हिंदुओं पे मुश्तमिल है, 65%। तो मेरे ख्याल से अभी मुझे इस हाल में जो है इतने बड़े हिंदू नौजवान नज़र नहीं आ रहे, इवन क्रिश्चियन कम्युनिटी से भी। और हिंदू जो हैं नौजवान इस टाइम वो गुस्से में हैं। ठीक है, हम लोग सिलेक्टेड जो MNAs MPAs हैं उनको हम रिजेक्ट करते हैं। वेरी गुड। और इसकी जो सबसे बड़ी मीटिंग जो है वो 8 तारीख को कराची में हमने रखी है मिनारिटी वोट मूवमेंट के नाम से। हम अपने लोग ला रहे हैं बल्दियाती इलेक्शन में, और इसमें मैं आप तमाम जो सीनियर्स लोग बैठे हैं उनको यही रिक्वेस्ट करूँगा, आपकी काउंसलिंग की हमें ज़रूरत है। अगर आप हमारे साथ बैठना चाहते हैं, हम अपने ज़्यादती कॉन्फ्लिक्ट जो है इस वक्त साइड पे रखते हैं। आप हमारे पास हैं, अगर नहीं आ सकते, हम जूनियर होने के नाते हम आपके पास आते हैं। अगर नहीं भी आते तो अल्लाह आपको खुश रखे, लेकिन हम जो अपनी जो पॉलिसी हमने बनाई है, जो चीज़ें हम करना चाह रहे हैं, जो इलेक्शन कमीशन में हम जाना चाह रहे हैं, उसके बाद अगर इलेक्शन कमीशन रिस्पॉन्स नहीं देती, जो हम सुप्रीम कोर्ट में चीज़ें लेके जाना चाह रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इंशाल्लाह उस पर तब्दीली आएगी। और 80-100 से ज़्यादा जो हमारी फोरम पे लड़के जो है ना वो बल्दियात का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, और इसमें जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे उनको हम फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर रहे हैं और सही तरीके से आ रहे हैं। जो एक दोस्त ने बात की थी कि जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है हिंदू कम्युनिटी की, वहाँ से इलेक्ट होके बंदा है, तो वो चीज़ें हम हर पार्टी के पास जा रहे हैं। राशिद महमूद साहब से भी बात हुई थी, सुमरो साहब से, वो उम्रे पे गए हैं, पीपल्स पार्टी और जितनी भी पार्टी हैं, हम उनको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जितनी भी हमारी डेलीगेशन मीटिंग्स हो रही हैं, कि जितना आप सिलेक्टेड गवर्नमेंट से डिस्टर्ब थे, परेशान थे, इतना ही हम हिंदू नौजवान जो है ना अपने सिलेक्टेड MNA MPA से डिस्टर्ब हैं। वो इस वजह से हैं, कल एक लड़की लास्ट एक बात बताना चाह रहा हूँ, वो इस वजह से एक लड़की कल मनीषा हिंदू कम्युनिटी की मेघवाल कम्युनिटी को एक उसका केस चल रहा था, उसको फोर्सफुली कन्वर्ट कर दिया गया था, उसका केस चल रहा था हाई कोर्ट में, लड़की पेरेंट्स के पास ही थी। कल लड़के ने दोबारा उसको 12 पुलिस मोबाइलों के साथ अगवा किया है। आज उसको जब हाई कोर्ट में पेश किया गया तो लड़की ने स्टेटमेंट दिया है कि मुझे फोर्सफुली कन्वर्ट किया गया है। और SHO को जब SHO को पता था कि ऑलरेडी केस जो है हाई कोर्ट में चल रहा है, उसने एक तो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ तोड़ा है, उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि अगर हमारे MNA MPA से ज़्यादा वो बढ़कर है SHO, जो हमारे MNA MPA उसको ना डिसमिस करा रहे हैं, ना मुअत्तल करवा रहे हैं, ना इंक्वायरी रिपोर्ट बिठा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ऐसे सिलेक्टेड MNA MPA जुल्फकार साहब सुन रहे हैं, जो कि वो ह्यूमन राइट्स कमीशन के मेंबर हैं, तो वो बिल्कुल नोटिस लेंगे। इस पे हमने सुरेंद्र साहब को भी रिक्वेस्ट की थी, वो भी अल्लाह जी बहुत शुक्रिया सर। वो निसाब पे आप लिखते हैं जी बिल्कुल ठीक कि हमारा निसाब तो अपने लोगों के लिए, मिनॉरिटीज के लिए, बच्चों के लिए
वो तो बनना चाहिए। वो पहले हमने सिंध गवर्नमेंट में बनवाया था, लेकिन उन्होंने इंडोर्स नहीं किया। दूसरा इलेक्ट्रल सिस्टम जो है वो यहाँ कराची और इंटीरियर का बहुत डिफरेंट। वो बडेरे जो है वहाँ वो उधर जो है ना एक हिंदू रिलीजियस बोल रहे हैं आप, रिलीजियस कोर्स बोल रहे हैं, मजहबी माइनॉरिटी बन गया है। चलो अच्छी बात है। हमने वैसे ट्राई किया था उस जमाने में, हमारे जो वो MP हैं यहाँ के घर के वो जी आगे चलो बल उन्होंने बन गया है तो ठीक है। बाकी इलेक्टोरल सिस्टम में अगर ड्यूअल वोट का इस पे वर्क करें कि भाई हमें ड्यूअल वोट का, जैसे कहा कि और जो रिजर्व सीट पे मिनॉरिटी जो भी लड़ती हैं, तो यहाँ हमारे यहाँ तो डिवीजन लेवल पे हो और हमारे ड्यूअल वोट का स्ट्रगल होना चाहिए कि यहाँ हमें 2 वोट देना चाहिए, हम मुस्लिम को दें और हम अपना भी जो है अपना नाम नुमाइंदा इलेक्ट करें, क्योंकि सिलेक्शन से जो बंदा बोलता ही बहुत तो ठीक है। तो ये 2 बातें थी, बाकी तो बातें सब वही है कि भाई मिनॉरिटी होनी चाहिए। मिनॉरिटी तो दुनिया में मिनॉरिटी के नाम सब पहचाने जाते हैं, रिलीजियस मिनॉरिटी से नहीं पहचाने जाते। बिल्कुल, वो नंबर्स की बात है। चलो बाकी इस पे वर्क करें, इलेक्टोरल सिस्टम पे वर्क करें कि अभी कौन सा इलेक्टोरल सिस्टम चाहिए। जी ठीक। ये सिलेक्शन में तो काम चलता नहीं है, मुझे चल जाता है, एग्रोमेंट पे चल जाता है, इससे लेवल पे चल जाता है, आप लोगों को ज्यादा पता होगा, लेकिन इस पे मेहरबानी करके वर्क करें। बहुत सर। सर मेरा नाम एहसन, मैं बाहरी हूँ। काश वो जमात इस्लामी साहब बैठे होते तो बड़ा अच्छा लगता कि पता नहीं किस माजी की बात कर रहे हैं। तो आपके नाम सर एक ही शेयर किया जाता है, हाँ तुम बोलते तो सच हो मगर इतने सादा भी नहीं हो, इतने सादा भी नहीं हो। तो ऐसा नहीं है कि कहानियाँ 1500 साल पहले 2000 साल पहले क्या हुआ, ये सब कहानियाँ आज की बात की जाए। आज का सच ये है कि जो इंतखाबी जो सिस्टम है करने का प्रोसेस है, उसमें करप्शन और इखलाकियात से बालातर जो बातें हो जाती हैं वो ना होनी चाहिए। मसलन आपको मसला कराची का, मैं दिहाड़ी में रहता हूँ और मैं गालियाँ दे रहा हूँ सिंध के वडेरे को। अरे भाई मैं बात करूँ, लियारी की बात करूँ, और ये जो बातें करते हैं ना कि वडेरे चौधरी ऐसे हैं, मदारे ऐसे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब झूठ बोलते हैं। मेरा ताल्लुक देहात से एंड आई प्राउड ऑफ दैट, और मेरा एलीट क्लास से ताल्लुक है। हमने तो कभी अपने मदारों को, हारियों को नहीं मारा। ये सब झूठ बोलते हैं, सियासी वो चंद लोग होते हैं, तो चंद का सब पे नहीं थोपा जा सकता, समझ लें सर। और जो दूसरा है कि इंतखाबात में ये कम से कम करें कि एटलीस्ट 50% लेडीज को दें सीटें। कोशिश करते रहें, फिर क्या होगा, कहेंगे कि रियलिटी नहीं है। रियलिटी तो हम खुद बनाते हैं ना। रियलिटी क्या चीज़ होती है? तो आप 100 भर रहे हैं, ये भी रियलिटी आप खुद बना लीजिए। 50% आप वोटों को दें चांस, वो आए ग्रास रूट से आए, तो चीज़ें बदलती हैं। और दूसरा ये कि ये ना हो कि इलेक्टोरल प्रोसेस जब हो रहा होता है, मैं आपको माँ बहन एक कर रहा हूँ, आप मुझे एक, मेरी माँ बहन एक कर रहे हैं, और आखिर में कहते हैं कि जमहूरियत के वसीतर मफादात में मैं आपके साथ हूँ। अरे भाई ये 6 महीने एक माँ बहन आपने मेरी की, वो क्या था? तो ये जो पार्टी पॉलिटिक्स जो होती है ना, उसमें जो इखलाकियात है उससे बाला उस पर कोई कंप्रोमाइज़ ना होना चाहिए कि आप सिर्फ मैनिफेस्टो पे बात करें, आप हकीकत जो आपके मसाइल हैं उन पे बात करें, ना कि इन जातियात पे, ना कि आप उन पे ऊपर नीचे या मजहबी बातों पे पढ़ें। और ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान में अब ज़्यादा कोशिश होनी चाहिए कि नॉन मुस्लिम है उनको ऊपर लाना चाहिए। हर पार्टी की कोशिश होनी चाहिए कि उनका दर्द है, पेन है, तो उनको आप लाएं ऊपर, फिर पता चलेगा कि असल हकीकत होती क्या है। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आप सब हाज़रीन का, मेरी तरफ से शुक्रिया, खास तौर पर रवि साहब का, डॉक्टर जयपाल, जुल्फ़िकार साहब, मंगला साहिबा, मुस्लिम साहब, नदीम साहब, मुस्लिम माइकल साहब। मैं माइक हैंड ओवर करता हूँ अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जनाब नईम यूसुफ गिल साहब को। वेल थैंक यू वेरी मच आप सबका टाइम का, और खुशी ये कि आप सभी ने बहुत सारे मसाइल को उजागर किया यहाँ पे। सब मसाइल का हल तो ऐसा हम नहीं निकाल सकते, लेकिन मेरा ख्याल मसाइल को उजागर करने से उनके हल की तरफ सोचा जा सकता है। और मैं शुक्रगुजार हूँ आप सभी दोस्तों का
जिन्होंने काफ़ी अच्छे रिकमेंडेशंस हमें दी, और होपफुली अभी हम जो जिस पे हम काम कर रहे हैं मैनिफेस्टो पे, तो होपफुली हम तमाम पार्टीज तक अप्रोच करेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये चंद मैटर्स हैं जिनको वो कंसर्न करें और इन पे वो वर्कआउट करें, और स्पेशली इम्प्लीमेंटेशन प्लान जो है ना वो वाज़िया करें अपना, कि वो आने वाले दौर में इन पे काम करेंगे। और दूसरा एक दूसरे से हमें खिलाफ या एक दूसरे की मुखालफत के लिए हम ये सिटिंग नहीं रखते, लेकिन फिर भी ये है कि चंद एक जगहों पे हमारी सोच शायद एक्सेप्टेबल नहीं है, तो जहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है वहाँ पे रिजेक्ट होने के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। और होपफुली वो रिजेक्शन ऐसा हमारी पर्सनल ज़ात पे नहीं है, वो हमारे उस आइडिया पे या उस सोच पे है। और जैसे अभी सब बातों में जिक्र हुआ कि हमारी जो हमारी मुआशी हालत के साथ साथ हमारे जो समाजी हालात हैं उन पर भी हमें गौर व फिक्र करना चाहिए। और जैसे अभी हमारे दोस्त ने कहा कि अखलाकियात पे काम, और शायद मेरा हाल सियासी पार्टी होने की हैसियत से सबसे पहले हमें इसके ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी पिछले चंद महीनों में इस चीज़ को काफ़ी उजागर किया गया कि वो बुरा, वो अच्छा, वो बुरा, और अभी तो ज़ातियात इतना आ गए हैं कि हम उसकी घर की बातों को भी लेके सामने झंडा खड़ा कर रहे हैं कि ये आपके तो घरों में ये चलता है। तो बहरहाल सियासी पार्टीज़ की हैसियत से और इंडिविजुअल्स की हैसियत से, और ना सिर्फ सियासी या इंडिविजुअल की हैसियत से, आई थिंक के CSOs की हैसियत से भी हमें इन चीज़ों को एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए, मशावरत करनी चाहिए, और जहाँ जो बात अच्छी है उसको अडॉप्ट करने में देरी नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक चूँकि हमारा NCJP का शुरू से यही, आप बहुत दोस्तों ने हमारे थैंक यू वेरी मच फॉर योर अप्रिसिएशन, कि हम चाह रहे हैं कि NCJP हमेशा मिनॉरिटी राइट्स की, स्पेसिफिकली रिलीजियस मिनॉरिटी पे हम काम करते हैं, और हम सिर्फ एक मिनॉरिटी की बात नहीं कर रहे थे, हम तमाम तर मिनॉरिटीज़ की बात कर रहे थे। और मिनॉरिटीज़ डजंट मीन कि यहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी में है तो जहाँ वो मिनॉरिटी हम उनकी बात नहीं कर रहे, हम वहाँ पे उनकी भी बात कर रहे होते हैं। यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप बात करें तो हम ये रिकमेंडेशन वहाँ पे भी पूरे ज़ोर और शोर से देते हैं कि वहाँ पे भी राइट्स को बैलेंस किया जाए, सिर्फ ये नहीं कि हम पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.